क्यों करते हैं हम डीटी वर्शिप? हमारा यस डीटी वर्शिप करते हैं क्योंकि उसके 2 पॉइंट्स लिखे हैं श्री प्रभुपाद ने। इसमें फर्स्ट है, एक है क्लीनलीनेस और दूसरा है डिसिप्लिन। मींस प्रभुपाद जी कोई भी डीटी वर्शिप करता है तो प्रभुपाद जी 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। यू मस्ट मेंटेन एवरीथिंग वेरी वेरी क्लीन। And second point Srila Prabhupada used to highlight was everything has to be on time, punctual. इसको हमने अब देखते हो 4:30 बजे सुबह सारे मंदिरों में शंख बजता है। Everything happened dot on time. Srila Prabhupada ने तो वृंदावन मंदिर में घंटी लगा के रखा था। और सब कुछ घंटा जब बजेगा उसके अनुसार सब कुछ चलता रहना चाहिए। Prabhupada जी would personally make sure that everything happening as per that. तो कभी घंटी नहीं बजती थी टाइम पे तो प्रभुपाद जी जाके पूछते लेके आओ क्या हुआ देखो आप जाके। We had set a big bell there. Now also that bell is there which rings. So what happens because of punctuality and cleanliness then? Purification comes, Prabhu. सत्वगुण बोला था Mode of goodness. Close contact की वजह से purification आता है। सत्वगुण. No, this is important word I had highlighted. Okay. And what happens because of सत्वगुण then? हम कंटिन्यू कर पाते हैं अपना जो ये डीटी वर्शिप। You develop a relationship with the Lord. Relationship. जो आप भजन करते हो मोड ऑफ गुडनेस में अपराध बाकी सब चीजों से हट जाती है प्रभु जी। Raise your hands actually. It's difficult simultaneously. Okay. So when you come to mode of goodness, then your bhajan, you don't commit offenses or your bhajan becomes pure. It helps in bhajan, basically. There are lesser tendency to commit offenses when you're in mode of goodness. In mode of passion, ignorance, you are distracted, your mind is distracted, and because of inattentive chanting, you cannot attain perfection. But by deity worship, actually, you come to mode of goodness because you maintain regularity, discipline, or punctuality, and cleanliness. That helps to come to mode of goodness. And if you do bhajan in mode of goodness, that bhajan is very effective. This is one point we discussed. Any other reason we discussed why we do deity worship? Yes. What did we discuss? Hare Krishna, Prabhu. Yes. One of the one of the points also that we discussed that deity worship, it brings peace and prosperity. Yes, peace, prosperity brings to the temple by properly taking care of the deity. पिछले जन्मों की अशुद्धताओं को मिटाता है डीटी वर्शिप। Our mind is contaminated, it is restless. The deity worship helps one to fix one's mind. और कोई रीजन हम डीटी वर्शिप करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया। रीचिंग अच्छा होगा अगर डीटी वर्शिप होगा तो। The deities are happy, the temple flourishes automatically, the bleaching flourishes, everything flourishes. और कोई पॉइंट हमने डिस्कस किया था डीटी वर्शिप का। We come out of this bodily conception of life. इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। गृहस्थ जीवन में एक टेंडेंसी रहता है गृहमति बनने का कि सब कुछ मेरा है, me and mine. So when your deity as center of your house, then you see everything in relationship to deity. And गृहस्थों के इसलिए जो अर्चुगिरों की सेवा है, नागवेनी माता प्लीज म्यूट कीजिए। तो गृहस्थों के लिए डीटी वर्शिप करने का ये प्रावधान या उनको ये रिकमेंडेड स्पेसिफिकली गृहस्थ लोगों ने डीटी वर्शिप करना चाहिए। इट हेल्प्स देम टू कम आउट ऑफ दिस मी एंड माइंड टेंडेंसी, see everything in relation to Krishna. Otherwise, the Prabhupada writes there is a tendency to fall down. One will surely fall down, Prabhupada ji, if deity worship अच्छे से नहीं करेंगे. And these opulent householders actually can utilize all their opulences in serving the deity form of the Lord. ये भी डिस्कस किया था। मैं और क्या डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमारे भजन में और नाम में अपराध नहीं होगा, भक्ति में प्रगति होगी डीटी वर्शिप करने से। Yes. और ये भी हमने डिस्कस किया था कि to relate to deity as a person is more easier than to relate holy name as a person. In the beginning stage, when you worship the deity, it's easy to relate as the deity is a person. कि व्यक्ति है सामने है तो आप फोकस के साथ कर सकते हो। But when you chant, immediately
जब आप जप करते हो तो जप करते वक्त आपको हरिनाम एक प्रभु है, प्रभु की मैं सेवा कर रहा हूँ, ये समझ पाना थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए when you serve deities actually automatically you get to see holy name also as person, and that helps. So these are the few points actually we have seen yesterday. Today we'll continue a little more on the point of deity worship, which is very हरे important. कृष्णा प्रभु जी, Yes. दंडवत प्रणाम। Namaste. प्रभु जी, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैंने देखा है ना डेटी वर्शिप, मतलब मेरे घर में लड्डू गोपाल है, मेरे प्रभु एंड जी में डिस्कस करें हम लोग नहीं, आई जस्ट क्वेश्चन वांट टू आंसर। टेल यू दैट कि इवन इफ वो कुछ बाकी कुछ नहीं करते, चैंटिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, बट अगर उनको भगवान की सेवा करनी है, उनको निलाना है, तो वो ही डज इट विथ लव। तो मतलब डेटी वर्शिप आपको कनेक्ट कर देती है भगवान से। Yes, a lot of people can get engaged in deity worship. पूरा गांव पहले रहता था, गांव में एक मंदिर रहता था और अलग अलग प्रकार से सारे गांव के लोग कनेक्ट हो जाते थे। कुछ लोग भगवान के लिए नो कई सारे लोग जो मंदिर में आते हैं धान लेके आते हैं, कोई फ्लावर लेके आते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई मंडप बनाते हैं फेस्टिवल है तो हाँ, कोई लोग है वहाँ पे डीटीज के लिए कपड़े बनाते हैं, नो कोई ज्वेलरी बनाते हैं या लेके आते हैं। In this way, a lot of people get opportunity to practically engage oneself in Krishna's service, which is important. Yes. तो प्रीति लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज çré-mürter-anghri-sevane प्रीति। वैदिक साधना के लेवल पर हम प्रीति से भगवान का सेवा कर सकते हैं क्या? राग नहीं है अभी, हम कैसे करेंगे प्रीति से भगवान का सेवा? शुद्ध भक्ति चिंतामणि ये किताब है, श्रील त्योराम महाराज के द्वारा लिखा गया है। उसमें महाराज जी लिखते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ भक्तों ने अपने संसाधनों के अनुसार भगवान का सेवा करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कम करे। अभी कौन कहा था पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यू सेलिब्रेट मैरिज एट योर होम एक्चुअली, सेम वे यू शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स फॉर द डीटीज। तो घर पे कोई शादी होता है तो आप कितना खर्चा करते हो? राइट, यू स्पेंड फैबुलसली, राइट। Similarly, actually, deity is the most important person in your house. Lesser person, he's most important person, he's the owner of the house. So as you celebrate for your family functions, actually, that much opportunity you should try to worship the deities also, not spend less. Devotees should love the Lord as if he were a friend or family member, and they should gaze on him with the tears of love. So that's what we're discussing, that we should take it as the chief family member. जैसे किताब है थर्ड पार्टनर, पता नहीं कोई भक्त ने पढ़ा हो तो, जब तक महाराज के डिसाइपल्स ने लिखा है गृहस्थ भक्तों के लिए कृष्ण इज द थर्ड पार्टनर, टू हस्बैंड एंड वाइफ एंड थर्ड पार्टनर इज कृष्णा, राइट। So he is the most important family member actually, around whom the life should be centered around. We should accept deity as one of our family members and gaze upon the deity with the tears of love. And having given their hearts, then it will not be difficult. If you give heart to somebody, then we give our possessions, our wealth, everything we give. It will be easy once we develop love for the deity actually. We won't mind giving everything for the sake of the deity. And deity is a family member, so the wealth doesn't goes out of your home. Right? It's the glory of your family only if you worship. But thing is, you become part of family of Krishna. When you accept Krishna as part of your family, you find yourself becoming a member of Krishna's family in spiritual world. There's the glory of deity worship. Radha Krishna worship doesn't happen on Vedic. It happens only on a spontaneous platform. तो इसलिए भक्त पूछते हैं कि फिर हम वैदिक भक्ति के स्तर पर राधा कृष्ण की पूजा कैसे कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण की पूजा जो होती है हमारे इसमें वैदिक साधना के लेवल लक्ष्मी नारायण की तरह होती है। There is a Lakshmi Narayan. We worship in the mode of Lakshmi Narayan, the beginning of our sadhana. But as a devotee progresses more and more in a spontaneous mood, their external worship remains same, formal and regulated. Pancharatrika Vidhi, externally. Because there are going to be a lot of new brahmacharis or new devotees or new brahmacharis going to come and worship deities. They will not be that advanced. You cannot change externally. The standard will remain same, formal worship standard. We'll do as per the rules and regulations which are given. जो rules regulation है उसके अनुसार ही हम करेंगे। उसको पंचरात्रि का विधि कहते हैं।
राधा कृष्ण कैसे हम वर्शिप करेंगे? लक्ष्मी नारायण का जैसे करेंगे। परंतु जैसे जैसे अर्चु गुरु का सेवा करते करते हमारे हृदय के अपराध मिटेंगे तो क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन के स्तर पर आ जाएंगे। And on the platform of Vrindavan star, yeah, on the platform of this spontaneous affection for the Lord, actually, gradually you see it is Radha Krishna or the reciprocate as Radha Krishna or Lakshmi Narayana as you come to the more advanced platform. And this is more advanced stage, and the deities also reciprocate accordingly as you grow and worship them as per Radha Krishna. The standard will not change. So as you advance, the more the natural mood will come. Right now, it's more of rules and regulation. चलो ये कितने बार घुमाने का है, कितना अभी दंडवत करना है, अभी ये करना है, वो करना है. It's more of rules and regulations. But when you advance, it will be more of affection. You'll want to celebrate. You'll want to render service to the Lord. You'll want to offer arti with a great devotion and love. Considering that when they're giving you opportunity to intimately serve, the deities are giving opportunity. So that mood internally will change. It will not be push. आज किसका, आज मेरा सेवा है क्या? ओके ठीक है, करना करूंगा मेरा सेवा कब आएगा? One will be eager, more and more eager. मुझे कब सेवा करने का चांस मिलेगा deities का? Because that's what one wants, to go in the spiritual worlds and render loving devotional service to the divine couple. The deity worship, one is realize that the divine couple is just standing in front of, in your own home or in your own center. Then why not? Because that's our ultimate aim. So as we develop a spontaneous mood, we'll be eager to render service to the Lord in varieties of ways. हम देखते हैं डिवोटी खुद सेवा करते, जैसे लादिनी माता जी का स्टोरी, बुक है उनका लादिनी माता जी के बारे में. तो लादिनी माता जी बड़े प्रेम से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का सेवा करते, उनके लिए पोएम्स लिखते थे. एंड दे हैड बिकम हर लाइफ एक्चुअली. अलोन शी वाज सर्विंग जगन्नाथ जी, ऑल ऑफरिंग्स, ऑल वर्शिप, होल डे शी वाज टोटली प्रैक्टिकली एंगेज्ड. उनके सपने में आते जगन्नाथ जी एंड ही यूज्ड टू गिव हर इंस्ट्रक्शंस एंड they had a very great reciprocation. It was very, very advanced actually. We see Janma Mataji's daughter is there. So उनका book है श्यामा और श्यामा कुमार माता जी. So just Shama, it is written that she used to personally go and get flowers. किसी को अलाउ नहीं करते थे. खुद सारे flowers, so many varieties of flowers. हर बार नए flowers. भगवान को variety चाहिए. Right, varieties of different flowers and offered to the Lord. So one become very personal and intimate. ऐसा नहीं कि चलो flower हो गया लगा दिया. पहले तो हमें conscious नहीं होती flower है नहीं. But as one grows, one become more conscious कि आज भगवान को ये सेवा किया, कल ये सेवा, ये भोगा, कभी वो भोगा. So you become more and more spontaneous in devotional service. So there are devotees actually who comes to this Vrindavan platform and they serve deities very, very intimately. मुझे पता है कि कुछ devotees जैसे flower festival को 2-2, 3-3 रात जग के एक flower का वो टर्बन पीसेस ये सब बनाएंगे कलियों का. पूरा रात जग के एक्चुअली एक फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करेंगे एंड दे आर सो पर्सनल सर्विंग द डीटीज. So gradually the spontaneity comes. हम देखते हैं राघव पंडित का स्टोरी आता है. वो नारियल लेके आए थे, गलती से उन्होंने छत को हाथ लगा, नारियल को हाथ लगा भगवान के लिए. दूर से खुद के आंगन में नारियल के झाड़ थे, परंतु used to go miles actually to get a coconut which are more sweet. हालांकि घर में भी कोकोनट थे, गलती से हाथ लग गया तो उन्होंने he got a new coconut actually. So he was so concerned that proper worship should go to the deities actually. The devotees become very, very concerned. जैसे हम देखते हैं ऑल्टर में फैन लगाते हैं, एसी लगाते हैं. डिवोटीज ठंडी में ठंडी के कपड़े पहनाते हैं. अभी हम एक यहाँ पे हमारे इधर एक राम भक्ति प्रभु जी रहते हैं पास में. उनकी मदर है, हर एज इज 83.
उनके ऊपर हम कल गए थे एक्चुअली, मूवी बनाने वाले, छोटा सा 5 मिनट का डॉक्यूमेंट्री मेरे इंटर्न से कुछ सिंबॉसिस के, सो वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल फिल्म ऑन हर। कोरोना से वो भगवान के लिए कपड़े सिलता है, वो 4 साल में उनने 150 ड्रेस बनाए भगवान के। सब अलग अलग फैशन की, कितना मैथमेटिक्स रहता है उसमें भी, कैसे पैटर्न अरेंज करना है ना, वो खुद करते हैं और दिन भर लगे रहते हैं ड्रेस बनाने में। तो विंटर के 70-80 ड्रेस बनाए उन्होंने, और बाकी टाइम के 70-80 ड्रेस बनाए, और एक एक, एक ड्रेस पूरा फैशन डिजाइन का एक नमूना है, इतना वैरायटी। अलोन शी इज डूइंग हर सर्विस एक्चुअली, एंड किसी को हाथ नहीं लगाने देते, वो बनाते हैं, और वो मुक्ति his wife, she dresses the deity। तो इतना बुढ़ापे में भी पूरा दिन लगे रहते हैं, दिन का साथ में सो मेनी आवर्स एंड आवर्स एक्चुअली मार्केट में जाते हैं। हर बार उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि इस बार क्या नया डिजाइन बनाने का है। तो इस तरह से डिवोटी का पूरा कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे आप डीटी का प्रेम से सेवा करते हो कि इस बार कौन सा फेस्टिवल, क्या डेकोरेशन रहेगा, क्या भोगा बनेगा। प्लीज प्रे अच्छे से मूवी आए और हमको उनके भक्ति को ग्लोरीफाई कर पाए। जिस प्लानिंग स्क्रिप्ट, क्या स्क्रिप्ट रहेगा। तो इस तरह से डिवोटी धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस प्लेटफॉर्म पे आते। यू नॉट थिंक कि अरे हो गया ना, 8 ड्रेस हो गए। यू वांट टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड एंड यू वोंट माइंड rendering more and more service to the deities. You come to spontaneous platform. कोई बोलेगा अरे बहुत टाइम जाता है प्रभु जी ये सब डीटी वर्शिप उसमें, है ना, तो हम क्यों करें डीटी वर्शिप, बेटर है कि हम रीडिंग हियरिंग चैंटिंग ये सब करेंगे, डीटी में इतना टाइम जाता है। तो डीटी वर्शिप प्यूरिफाई तो करता है, साथ में भक्तों का सुनने में रुचि भी बढ़ता है भक्ति का, डीटी वर्शिप करने से। और सुनने में रुचि बढ़ता है, और जो सुनता है जो सुनते हैं वो ज्यादा डाइजेस्ट भी होता है। और सबसे फूड टेस्टी कब होता है, जब आपको भूख लगा रहता है। कुछ भी रातों भी चलता है, यू नॉट आस्क कि क्या मुझे खाने का है, क्या बना ये नहीं पूछेगा, बहुत भूख लगा तो लाओ जो भी लाओ, वो बना वो लेके आओ, राइट। सो इफ यू आर हंग्री then your digestion is really good. So similarly, when you worship deities, automatically you develop affection for Krishna. Then you want to hear for the same person. आपको कृष्ण प्रति प्रेम है तो आप और कृष्ण के बारे में जानना चाहोगे, और क्योंकि वो ईगरनेस है तो जो सुनोगे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। नहीं तो हम सुन रहे पूरा दिन, बट we don't have that much digestion, so we're not able to utilize that. Of course, that is good, but thing is, if we hear with eagerness, it's much more better actually. So because deities, we increase in affection by serving the deities, it automatically increases one's longing for hearing about Allah. और जो सुनते हैं क्योंकि चित्त का शुद्धि होता है डीटी वर्शिप करने से, तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। जैसे आप डीटी वर्शिप करो तो माइंड भटकेगा नहीं, मन का शुद्धिकरण होगा। आपका मन भटक रहा है बार बार, तो आप कथा में क्या बताया था, क्या बताया था यू हैव टू डू, एक क्लास सुनते तो आपको 20 बार रिवाइंड करके सुनना पड़ता है, तो यू मिस सो मेनी पॉइंट्स, माइंड गेट इमीडिएटली डिस्ट्रैक्टेड। बट व्हेन यू वर्शिप द डीटी, your mind becomes purified, and then whatever you hear you absorb immediately, like Rishikesh, immediately absorb. तो जो भक्त होते हैं, जो डीटीज का बड़ा प्रेम से सेवा करते हैं, उनको भगवान के बारे में सुनने में बहुत रुचि रहता है। जैसे लादिनी माता जी, वो पूरा दिन सेवा में रहते थे, बट उनका 4-5 किताब अलग अलग खोला रहता है, 5 मिनट भी मिलेगा तो पढ़ेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे तुरंत। राधा उनको भी दिन के सारे ऑफरिंग और सारे वर्शिप न्यूरोदान में सेवा करते हैं। सो व्हाट अ लिटिल टाइम इज टू गेट इन, आइदर इज टू रीड, और रात भर उनका सेवा 64 माला भी करते थे, तो फिर उसमें सोते थे जब ऑफरिंग लगाते थे भगवान को, बस उतना ही सोने का टाइम। ऑल टाइम इज सम एवरी द बुक्स आर केप्ट एंड यू रीड 1 पेज 2 पेज, इस तरह से उन्होंने सारे किताब कंप्लीट किए। सो नो इज ईगर स्टिल, नो ही विल फाइंड आउट अ वे एक्चुअली ऑफ डूइंग थिंग्स। ऐसे नहीं कि इसमें टाइम जा रहा है तो पढ़ नहीं पाएंगे। देखते कि जो भक्त इस प्रकार से वर्शिप करते हैं, उनको भगवान के भजन में भी बहुत रुचि होता है। जैसे अंदर प्रभु जी, अंदर प्रभु कितने बड़े कीर्तनी है इस्कॉन के, बट उनके डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड देखा, कितने सैकड़ों, 1000 more than 1000 शालिग्राम पीसेस आर देयर, राष्ट्र सखी इज देयर, so many deities actually worship. Krishna Balram Shila is there. So many deities he was, very thoroughly was worshipping, and he had so much taste in chanting. Both.
Because you want to serve Krishna better, then you need to know about him. So as you serve deities, you want to know every single detail about Krishna. सब कुछ जानना चाहते हैं. Prabhupada ji लिखते हैं भागवतम के 1.5.13 के परपत में भी, as they increase their service, their instinctive taste for hearing and reading becomes purified and directed towards topics of the Lord. जैसे हम सेवा बढ़ाते हैं, उतना हमारा सुनने में और जप करने में रुचि बढ़ता है. और श्री प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं कि this deity worship means to train neophyte devotees how to concentrate upon the form of Krishna, especially his lotus feet. तो हम कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा रुचि बढ़ता है भक्ति, अर्च गुरु का सेवा करने से. हम जैसे अर्च गुरु का सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्मरण भी उनका बढ़ता जाता है, क्योंकि सुबह शाम आरती करते हैं, उनका दर्शन लेते हैं, फिर उनको भोगा लगाते हैं, उनका एक महाप्रसाद लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा अर्च विग्रह का सेवा करते करते उनका स्मरण ऑटोमेटिकली बढ़ते जाता है. द फॉर्म हैज वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट एक्चुअली माइंड. Form, physical beauty. So these deities are physically manifesting their beauty, and that creates strong impressions in the mind. So it helps neophyte devotees to subdue their mind. नए भक्तों का मन इससे नियंत्रित होता है. तो उससे फिर और क्योंकि मन शुद्धिकरण हुआ है तो उनका सुनने में और जो रीडिंग करते हो, हियरिंग करते हो, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है उनको. इट नरिशेस रीडिंग हियरिंग, बिकम मोर रिवार्डिंग. ज्यादा फल मिलता है आप जब रीडिंग हियरिंग करते हो, तो जब आप अच्छे से डीटी वर्शिप करते हो. कई बार हम जब क्लास सुनते हो नींद आता है, तो डीटी वर्शिप आप करते हो तो आपका धीरे धीरे मन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, शुद्धिकरण होता है, तो आप ध्यान दे सकते हो. शुद्ध भक्ति चिंतामणि से बताया. कृष्ण के प्रति आपका आसक्ति बढ़ता है, और आसक्ति बढ़ने के कारण आपका पात्रता बढ़ता है श्रवण करने का, क्योंकि शुद्ध भक्ति चिंतामणि में कौन से लेवल के डिवोटी ने क्या सुनना चाहिए उसके बारे में लिखा है. इफ यू डोंट हैव अफेक्शन येट फॉर द लॉर्ड, आपका नृत्य नहीं हुआ है, तो आपको मोर अबाउट द मैजेस्टिक फीचर ऑफ द लॉर्ड, महाविष्णु, नारायण, controller, you should hear about these topics more. But as you grow in your attachment, Shuddha Bhakti Chintamani writes, then you can hear more advanced topics. So as your attachment to deity increases, your qualification to hear also increases. But if you are in a bhoga bhav, then you cannot hear confidential verses of the Lord. You imagine yourself in place of the Lord. It is not good for you. It is indigestion for you. But भगवान के प्रति प्रेम है. As you grow in your love for Krishna, you get qualification to hear more advanced topics about the Lord. Tada rajastamo tabada rajastamo bhava kamo lobadeshi chetayetana sitam sattve prasidhati. So by Rajagun and Tamoguna is diminished, and the taste in hearing chanting grows for a devotee, and the qualification also grows. तो शुरुआत में जो deity worship है, like we engage in the service of the deity, and for advanced devotees actually, the more they do deity worship as a smaran, as remembrance in their mind, actually they're always serving the lotus feet of the deity or the divine for advanced devotees. But that doesn't mean that they neglect deity worship, because we see all our acharyas, we discussed, right? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, they worship the deities. Even Gadadhar Pandit, Bhutta Gopinath, he worshipped. All the acharyas, we find they had deity worship. So ऐसा नहीं है. But their mood becomes more and more intimate. And although it's important you participate in Aarti, right? You see the Aarti, but even it is even more better, it is written in Shuddha Bhakti Chintamani, that you directly engage in service of the deities, basically bowing down before the deities and chanting their names and observing Aarti. These are limbs are there, definitely, it says. But it says cooking for the deities, dressing them, and doing menial service such as washing the floor or making garlands. This makes devotee even more conscious of the deity than just passively participating, not actively engaging deity service. So as we come closer
है ना। वैसे तो सारा मंदिर का सेवा डीटी से कनेक्टेड है, बट कुछ कुछ और पास, जैसे वर्शिप है, ड्रेसिंग है, ऑफरिंग भोगा है, कुकिंग है, डायरेक्ट डीटीज का सर्विस, या भगवान के सामने क्लीन करना है ऑल्टर, या भगवान के सामने फ्लोर, मंदिर का फ्लोर, these are the direct services to the deities actually. But somebody neglects deity worship, then that leads to collapse of entire spiritual community. क्योंकि जब सीनियर डिवोटी खुद डीटी वर्शिप नहीं करते तो उनके अंडर के लोग को भी इंटरेस्ट फिर नहीं आता। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तो जना, हाँ, से प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आप अच्छे से करते हो तो आपके अंडर लोग, उनको भी इंटरेस्ट उसमें आता है। आप नहीं करते हो तो लोग को भी इंटरेस्ट चला जाता है। कल हम डिस्कस कर रहा था मैं एक डिवोटी के साथ में, हम लोग कब सोच रहे हैं ना लाने का एक्चुअली। मुझे बता रहे थे कि थिंकिंग शुड आई डू कुकिंग। देखो आपको इंटरेस्ट है तो बाकी लोग को भी इंटरेस्ट आएगा कि चलो प्रभु जी बना रहे तो हम भी बनाएंगे। बट इफ यू डोंट हैव सो मच इंटरेस्ट देन द बॉयज आल्सो फील नॉट सो मच इंटरेस्ट, वो भी कुछ तो बनाएंगे। तो लीडर जो वहाँ पे हर एक सेंटर में जो लीडर रहते हैं उनका इंटरेस्ट रहता है दैट मूड percolates actually. In our temple everybody is interested in preaching because we find his destination is very interested in youth preaching and getting youth, and so पुजारी में रहते हैं, टाइम मिलता है तो तुरंत अपना एक प्रोग्राम चालू करते हैं। सबका अपना प्रोग्राम है, right? Because that's the mood of a leader actually. But wherever there is a more affection for the deity service, then the devotee also develops similar mood. We find that automatically the mood percolates actually. So when the leaders pay attention, हम देखते हैं इसोले जैसे गोपाल कृष्ण महाराज है, इतना प्रेम है उनको अर्च विग्रह की सेवा में कि महाराज रात को कितने बजे भी आए, 12 बजे 1 बजे, अगले दिन सुबह ऑल्टर में आप महाराज को वर्शिप करते पाओगे। तो जिनको प्रेम है वो नहीं देखेंगे कि रात को प्रभु जी लेट हो गया था, थोड़ा 10 का 10:30 हो गया था, नहीं। क्यों? will not give reason, will be eager and keen to serve the deities. You find Maharaj actually, whatever time he comes, although his age is almost like touching 80 now, or probably 80 already, but Maharaj still, like, he comes, and many times you will find Maharaj, Loknath Maharaj also, you find an altar there worshipping the deity. Next day they're there. But if leaders become very aloof, then devotees also become aloof. Shuddha Bhakti Chintamani says, if leading devotees act as if they are aloof from the deity, their followers will emulate their behavior and also become indifferent to hearing and chanting about the Lord. Because you don't serve deity properly, then you'll not properly hear and chant also. Then what will happen? If you don't hear and chant properly, you'll fall down. It will remain. It will become the cause of the collapse of whole devotional community. Actually. So he says that if hearing and chanting are to remain as a heartbeat of ISKCON's devotional curriculum, and if devotees are to develop the proper qualification for these practices, then deity worship must be done perfectly. तो अर्च गुरु का सेवा बहुत अच्छे से करना चाहिए. If you maintain deity properly, then deities will maintain you properly. तो प्रभुपाद जी हाईग्रीव को लेटर लिखते हैं, कहते हैं कि at GBC you should see the standard is perfectly maintained and the deity worship is perfectly done. Then Krishna will give all protection. Neglecting these principles means neglecting Krishna's order. So you are cheap man, so continue maintain your behavior standard, the others will follow. अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं. Unless one is perfectly behaved person, you cannot teach others. The only request is that all the GBC members should be strictly to the standard of life and see that all others are following them. Then our centers will be well managed. That please do accordingly. इस प्रकार से अर्च विग्रह का सेवा में करना चाहिए. परंतु नहीं करते अर्च विग्रह सेवा तो पूरा कम्युनिटी का कोलैप्स हो जाता है. जैसे जुहू में प्रभुपाद जी तो बचपन से डीटी वर्शिप करते. उनके पिताजी कहते थे कि प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे पिताजी का मेन बिजनेस था डीटी वर्शिप, और उसके बाद वो साइड बिजनेस था उनका जो कपड़े का कोई दुकान था उनका टू डू, बिकॉज 1 बजे तक वो वर्शिप करते रहते थे. दोपहर के 1 बजे तक उनका वही चलता रहता था और फिर बाद में दुकान पे जाते थे. Right? That was the main business, DT worship. So one should make DT worship important business of life. प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5 बजे सुबह में डिंग 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 में पिताजी वर्शिप करते, उसका आवाज सुन के मैं उठ जाता था. और रात में भी you observe his father serving the deities. Actually, in this way Prabhupada was trained. Prabhupada ji
और बालक थे तो घंटों घंटों राधा गोविंद जी को निहारते थे। हम लोग कितना देर दर्शन लेते हैं, प्रभुपाद जी बालक थे तो घंटों घंटों बैठ के निहारते थे। उनकी बहन और वो पतंग उड़ाते थे जैसे, तो प्रभुपाद जी कृष्ण को प्रे करते, कृष्णा मेरा पतंग उड़ने दो। So children, if you pursue deities, if you give them chance to render service, they become very connected to deity actually. And they can see, and they becomes, no, deity becomes part of their life as one of their friends, a dear well-wish. प्रभुपाद जी कितना फाइट किए मिस्टर नायर के साथ में, जैसे जुहू में प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस किया था, ये राधा रास भी आपको मैं मंदिर ऑफर करूंगा। तो प्रभुपाद जी कितने सारे विघ्न आए, एक बार तो डिवोटीज ने दे भी दिया वो कि लिख के ना साइन करके, इट्स नॉट ओके वी लीविंग। प्रभुपाद said, I'll be the last person to leave that place. Prabhupada ji fought like anything actually. I have promised to Radha Rasbihari that I'll give you this home. How can Mr. Nair take this? Yes, and he was struggling so many ways actually. And Mr. Nair actually he died, and his wife wanted to oppose. वो तो एक बार सारे म्यूनसिपालिटी लोग को लेके भी आई और सब तोड़ रहे थे। आखिरी मोमेंट पे डिवोटीज ने पॉलिटिशियन को फोन किया, बाल ठाकरे जी को फोन किया, और उन्होंने फोन किया और कहा कि क्या कर रहे हो यहाँ पे मुंबई में इन दो के मंदिर तोड़ रहे हो, और वो रुक गया। एक्चुअली आई थिंक ही डाइड ऑन द डे ऑफ प्रॉपर डिसअपियरेंस डे। कुछ तो कृपा मिला उनको लगता है बाल ठाकरे जी को, है ना, प्रॉपर जी के तिरुभाव के दिन उनका भी शरीर छोड़ा उन्होंने। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सर्विस किया उन्होंने। Right. इस प्रकार से हम देखते हैं। तो उसके बाद में वो और मिस्टर, जैसे उसमें दो तीन और गुंडे थे एक्चुअली उसमें, टेम्बे एक लोकल एमएलए था, ही वाज आल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और मिस्टर राणे था, एक माता जी उनको तो कर्ज किया था कि लाइक यू विल बर्न बिकॉज ऑफ योर ऑफेंसेस। तो प्रभुपाद जी पे कुछ तो ब्लैक मैजिक करना चाहता, प्रभुपाद जी के छोटा मूर्ति और कुछ कर रहा था, क्योंकि प्रभुपाद प्योर डिवोटी है, तो ब्लैक मैजिक आप काम नहीं करते, आप पे उल्टा आता। उसका दिमाग खराब हो गया कुछ, तो जाके वो खुद ही पेट्रोल केरोसिन डाल दिया, खुद को आग लगा दिया, बाहर आके जल गया वो मिस्टर राणे। इसलिए माता जी कर्स उसको मिला, बर्न बिकॉज ही कमिटेड सो मेनी ऑफेंसेस एक्चुअली। एक मिस्टर म्हात्रे था, वो स्टेशन में जाके डिवोटीज को ब्लास्फेमी करने के पैम्पलेट बांटता था। तो मिस्टर म्हात्रे उसको वो जो उसका कुछ तो स्कैंडल में पकड़ा गया, वो कोई स्कूल का ट्रस्टी था और स्कूल के कोई टीचर या कोई के साथ उसका स्कैंडल हो गया, तो सारे न्यूज़पेपर में उसको मुंह दिखाने के लिए जगह मेरा बाहर आने का मिस्टर म्हात्रे का। मिस्टर टेम्बे पोलाइट मेंबर को जमा करके बोले हम ही टेम्पल चलाएंगे इसको उनको निकाल के, ऐसा वो मीटिंग लेने वाला था। तो उस दिन के सुबह जिस दिन मीटिंग लेना, तो उस दिन उसको पैरालिसिस आ गया, कमर के नीचे का पूरा पार्ट चला गया उसको, है ना। So if you create offenses to the deity, then your life will not be easy. हम लोग भी ऑफर करने का ट्राई कर रहे हैं, because we got this place and these people are not properly worshipping, and it's not even their place actually. So in Krishna we also go trying to sneak in there and try to get hold of the Radha Krishna deities. We got it here, and we also decided कि यहाँ पे हम लोग अच्छे से सेवा करेंगे, और let's see आप लोग के prayers कुछ हो पाएगा hopefully. Yeah. But if deities are not properly taken care, then yeah, good things don't happen, wrong things happen. So our acharyas worship deity very nicely. There's a pastime of so many pastimes actually, different acharyas. Specifically, there's a pastime of Madhavendra Puri in Chaitanya Charitamrita. He got deity of the Gopal. No, साक्षी गोपाल बाद में आता है, ये गोपाल का माधवेंद्र पुरी को मिला, और माधवेंद्र पुरी इतना प्रेम से सेवा किए गोपाल जी, उसमें पूरा चैप्टर आता है उनकी सेवा के बारे में, कैसे उनको डीटी मिला, उन्होंने स्थापित किया, फिर सारे गांव वालों को बुला, इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ कि 50-60 पेज क्या क्या प्रिपरेशन बना था उसके बारे में, 50-60 श्लोक है एक्चुअली ये प्रिपरेशन, क्योंकि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद इतने एक्सपर्ट कुक है, तो अच्छा कुक रहता है, वो जानता है कि कुकिंग क्या होता है, तो ही कैन ग्लोरीफाई आल्सो नाइसली। इट इज ऑलमोस्ट 50-60 श्लोक जस्ट मेंशनिंग सो मेनी प्रिपरेशंस दाल चावल, सो मेनी थिंग्स आर मेड। ऐसा लगे 5 लोग चपाती में घी लगाने के लिए लगाए थे, 5 लोगों को रखा था उन्होंने, और फिर क्या क्या प्रिपरेशन बनाया, और कैसे अभिषेक हुआ, सैकड़ों मटके भर के जल लाया गया, गोपाल जी का अभिषेक किया गया, उनको सुंदर भोग लगाया गया, उनका ड्रेसिंग किया गया, फिर अलग अलग लोग आके, कोई आके गोपाल जी को लैंड दिया, कोई आके
गोपाल जी को गाय दे रहे, एक एक सब लोग गाय, कितने सारे गाय आ गए, ऐसे लिखते हैं कि गोपाल जी बिकम वेरी रिच आफ्टर दिस, भगवान खुद रिच हो गए, ऐसा लिखते हैं। और इस प्रकार से सेवा का वर्णन माधवेंद्रपुरी का आता है। 2 साल तक फेस्टिवल चला, रोज एक विलेज का था, आज हम फेस्टिवल करेंगे, आज हम फेस्टिवल करेंगे। एवरी सिंगल डे द फेस्टिवल वेंट ऑन फॉर 2 years। और सबसे एंड में वो प्रसाद देते थे माधवेंद्रपुरी, वॉट एवर, एवरीबॉडी वाज फीडिंग सो मेनी डिवोटीज। और फिर उन्होंने, डीटीज ने अभी यहाँ पे सेवा लिया और फिर कहा कि जाओ अपने लिए चंदन लेके आओ। तो सब छोड़ के माधवेंद्रपुरी खुद चंदन लेने के लिए निकले, वो जगन्नाथपुरी में निकले। तो पूरा कथा आता है। But Acharya is a very lovingly, Madhvendra Puri, like Rasika Acharya is worship deity so fabulously. There's so many pastimes actually in Lilamritam. Srila Prabhupada would gaze upon the deities actually in tears of love. Like Atlanta में Prabhupada जी का arrival actress है, is looking at Gaur Nitya and how merciful are Gaur Nitya. He's describing their mercy, that they come to bestow their mercy on these most unqualified people. What is their mercy? And tears are coming out of Srila Prabhupada's eyes. You see that. In our tradition also we see Srila Prabhupada has established so many beautiful temples, specifically in India, Vrindavan, Mayapur, Juhu, Hyderabad. These 4 temples Srila Prabhupada started when Prabhupada was in India. And very beautiful, fabulous temples. जितना लक्ष्मी कमाया, एक एक ईंट भक्तों के से अपार कष्ट से बना हुआ, जितना पैसा आता था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारा प्रभुपाद जी को देते थे। और उससे ही सारे वृंदावन, मायापुर, जुहू ये टेम्पल बने फॉरेन के, दिन रात बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, because that time ISKCON was not that famous in India. Mumbai they raised the fund, but Mayapur is so inside actually. Of course they raised, but most of the bigger chunks of funds came from book distribution, which is done outside India. Okay, so in this way we find deity worship is very very important limb of devotional service. Do we have something to read? उसमें है कुछ, आगे पढ़ेंगे हम. So we close, I think, deity worship here. Try to discuss in little detail. Yes. Share कर सकते हैं, we can just a little bit read. We want to close today, this first limb of devotional service. That's why we'll just try to read and cover and take questions. It may go 5-10 minutes extra, but we'll complete this limb of devotional service today. एक पैराग्राफ तक पढ़िए, कौन पढ़ेगा? Hare Krishna Prabhu. Shall I पढ़िए. read? Serving the deity with great devotion. It is said in Ädi Puräëa, a person who is constantly engaged in chanting the holy name and who feels transcendental pleasure being engaged in devotional service is certainly awarded the facilities of devotional service and is never given just mukti. Mukti means liberation from material contamination. When liberated, one does not have to take birth again in the material world. The impersonalists desire to merge into the spiritual existence and to end their individual existence. But according to Çrémad-Bhägavatam, Mukti is only the beginning of one's becoming situated in his normal condition. The normal condition of every living entity is to be engaged in devotional service of the Lord. From the statement of Ädi Puräëa, it appears that a devotee is satisfied simply with being engaged in devotional service. He does not aspire for any liberation from material conditional life. In other words, anyone who is engaged in devotional service is not in the material condition of life, although he may appear so. Hare Krishna. मम नाम सदाग्राही मम सेवा प्रिय सदा भक्तिस तस्मै प्रदातव्या न तो मुक्ति कदाचन। मम नाम सदाग्राही, जो सदैव मेरा नाम लेता रहता है। मम सेवा प्रिय सदा, और सदैव मेरा सेवा पसंद करता है, जिसको भगवान का सेवा बड़ा प्रिय है। भक्तिस तस्मै प्रदातव्या, उसको मैं भक्ति प्रदान करता हूँ। न तो मुक्ति कदाचन, उसको मुक्ति नहीं देता हूँ, उसको भक्ति देता हूँ। तो अर्चकों का प्रेम से सेवा करते हो तो आपको भक्ति प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का इस पे? So we have almost completed now this limb of devotion service, deity worship. Is there any question? Hare Krishna, Dhanusana Prabhuji.
आपने महाराज की कौन सी बुक का नाम बता रहे हैं? शुद्ध भक्ति चिंतामणि, शिवराम महाराज जी का किताब है, शुद्ध भक्ति चिंतामणि। बहुत डिटेल में किताब है। अच्छा, स्पेसिफिकली ये जैव धर्म, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सारी किताबों से महाराज compiled this book. This book talks about qualification of hearing. किस स्तर पे इसमें क्या सुनना चाहिए। पहले तो हमारा स्तर कैसे समझना चाहिए हमें भक्ति में, और फिर उस स्तर के लिए, उस स्तर से आगे बढ़ने के लिए आपको किस प्रकार का श्रवण करना चाहिए, उसमें लिखा गया है। तो तो किस हमको प्रकार का पढ़नी साधना चाहिए करना क्या प्रभु चाहिए। जी? किताब पढ़नी चाहिए क्या? आपको पढ़नी चाहिए क्या? पढ़ सकते हैं पैरेलली आप। यस, जी शुद्ध भक्ति चिंतामणि पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भागवत विधि और पंचरात्र विधि में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? भागवत विधि इज मोर ऑफ reading, hearing, chanting, Shrimad-Bhagavatam. Pancharatri ka vidhi is more of a deity worship actually. हाँ But our Bhagavad Vidhi is also more of a Pancharatrika. Because we are not spontaneous attraction. This is more on a spontaneous platform. This Pancharatrika Vidhi is more of a rules and regulation, regulated devotion services. तो हमारे रीडिंग हियरिंग भी अभी रेगुलेटेड है, हमको क्लास का टाइमिंग रहता है तब हम आते हैं, है ना, ऐसे पूरा दिन। तो रुचि नहीं है तो अभी हमारे लिए इट्स नॉट दैट स्पॉन्टेनियस, बट ग्रेजुअली यस। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने समराइज करके बताइए माता जी। यस, आपने कहा कि वो जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में, जो वो रात को भी आए बहुत लेट तो सुबह डेटी वर्शिप में मिलेंगे, तो प्रभु जी ये लोग टायर्ड नहीं होते? साधु संत जो भी, मतलब हिज होलीनेस गोपाल उसमें कृष्ण सुख होता है, हम उसमें सुख आते होता हैं है तो जैसे बिकॉज वो आध्यात्मिक स्तर पे है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हाँ, उद्योग में लिखा गया है कि जो आध्यात्मिक स्तर पे होता है वो ज्यादा से ज्यादा जो भी शारीरिक उनकी जो प्रवृत्ति है उससे वो मुक्त होते हैं। हंगर, अच्छा। थर्स्ट, lamentation, fear, all this you get, you need lesser and lesser. Okay. क्योंकि हम लोग प्रभु जी जब थोड़ा सा भी ट्रेवलिंग करके आते हैं तो हम सेकेंड डे हम कितने टायर्ड हो जाते हैं, तो वो रुचि नहीं रहती है। करते हैं लेकिन रुचि वो नहीं रहती है, इसलिए मैंने थोड़ा पूछा। इसीलिए वो महाराज और इतने हजारों भक्तों को आश्रय दे रहे हैं। बट हमें भी उनके चरण चिन्हों का प्रयास करना चाहिए कि हम लोग वो करने से ही होगा, वो ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा। तो हम उस तरह पे नहीं स्पॉन्टेनियस, तो एज ए रेगुलेटरी सर्विस वी शुड ट्राई टू बी देयर, है ना। तो हमने यहाँ पे कहा है कि आपको नींद नहीं आता है, जैसे हमारे सेंटर है अभी छोटे, तो आप टेम्पल हॉल में आके सो, कोई बीमार है तो इधर आके सो जाओ, बट कम टू टेम्पल हॉल, डोंट लाइक वी ट्राई, वी शुड बी सुंदर श्याम प्रभु जी हमारे कहते हैं आप बीमार भी हो तो, सुंदर श्याम प्रभु स्ट्रिक्ट अच्छे ब्रह्मचारी पूना टेम्पल में, बीमार भी हो तो आपको टेम्पल में आके बैठो मर रहा है तो भी टेम्पल हॉल में आके मरेंगे हम टीटीज को देख के मरेंगे तो अच्छा है, कुछ तो उद्धार होगा हमारा। जैसे प्रभु जी सुबह चैंटिंग करते हैं, जैसे संडे हम मंदिर जाते हैं तो कभी कभी हम बहुत टायर्ड रहते हैं, तो मंदिर में भी हमें सुबह सुबह से थोड़ी नींद आती रहती है, टायर्ड लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मंदिर चले गए ना, देखा जाएगा, कुछ तो सुधार होएगा, चलो चलो। तो वो सही है ना प्रोसेस? यस, गुड, सही है मतलब जी। महेश प्रो प्रभु जी, बीच में चर्चा हुई थी कि जप द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं, तो इन एक्चुअली तो जप जो है वो तो हमारे फायदे के लिए है ना, भगवान के फायदे के लिए थोड़ी है। तो वो तो हमारी खुद की सेवा हुई ना, भगवान की सेवा कैसे हुई? वो सारी सेवा वैसे तो हमारी फायदे के लिए है, भगवान को हमारी कोई सेवा की जरूरत नहीं है। आप भगवान के लिए जैसे झाड़ू लगाते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में लाखों लक्ष्मियां हैं जो भगवान के लिए झाड़ू लगाने के लिए लालायित रहती है और भगवान को झाड़ू लगाती है, लेकिन उसका बेनिफिट तो भगवान को कोई भी सेवा वैसा जरूरत नहीं है, सारा सेवा हमारे लिए है। तो जब भी एक प्रकार से भगवान का गुणगान है प्रभु जी, जब जो है ना एक प्रकार से भगवान का गुणगान है, बट उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो हम जो भी करते भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, ऐसे सोच के नहीं करते कि मैं अभी जब करके मेरे हृदय को शुद्ध करने वाला हूँ, वो बाय प्रोडक्ट है। हम जो करते जब करते भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते, हम जो अच्छे विग्रह की सेवा कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उससे जो होगा मैं खुश हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं तो हम हमारे लिए करेंगे तो बोलेंगे यार मुझे अच्छा नहीं लगा तो कल नहीं करूंगा मैं। नहीं, हम जो जब कर रहे हैं
भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारी खुशी के लिए। हमको कितना भी खराब लगे तो भी हम करेंगे जब, क्योंकि हमारे लिए वो भगवान के लिए। क्योंकि हमारा तो मूड चेंज होता रहेगा। आज बहुत मजा आएगा, और क्योंकि हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, कल लगेगा कि अरे एक माला भी करने में इतना सारा टाइम लग रहा है, मन भटक रहा है, तो आज नहीं करते। ये हमारे सुख के लिए नहीं है, जप है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ये हम प्रेम से करते हैं भगवान के लिए, तो हमारे हृदय का भी शुद्धिकरण होता है और हमारा रुचि बढ़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? 2 मिनट और। तो होपफुली मैं ऐसा आशा करता हूँ कि सब भक्तों का अच्छे गुरु की सेवा करने में रुचि बढ़ेगा। क्योंकि हमने नेक्स्ट ऑफ डिवोशन शुद्ध भक्ति चिंतामणि प्रभुपाद जी के अलग अलग तात्पर्य से समझने का प्रयास किया, और सब भक्त थोड़ा बहुत और भगवान के करीब जाने का, उनको कुछ ना कुछ प्रकार से अच्छे गुरु की सेवा करने के करीब जाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए और भी एक्चुअली बहुत सारा कंटेंट भक्तों ठाकुर ने भी काफी कुछ लिखा है, बट थिंग इज हम लोग वापस कभी और डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज थिंग्स कीप ऑन कमिंग इन फर्दर कोर्सेस समवेयर। सो व्हाटएवर वी कुडंट कवर राइट नाउ, वी ट्राई टू कवर इन other books as they appear when the references to deity worship. Okay. प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो शालिग्राम की पूजा होती है वो नहीं कर सकते ना हम स्टार्टिंग में? ऐसे किसी ने कहा है? हाँ, प्रियंवदा मेरी सिस्टर लेके आए थे ना शालिग्राम, तो गुरु महाराज ने मना किया टिल द टाइम वो शायद ब्राह्मण दीक्षित ही करे उनकी पूजा ऐसे, तो उनको बोला यू जस्ट गिफ्ट इट टू सम दीक्षित भक्त। Yes. So generally, actually, there, like many times family में traditionally होता है शालिग्राम शिला, तो then you may just do as it is done. Many families have the शालिग्राम actually as a part of their family culture. But yes, if it is up to us bringing it, then better Guru Maharaj के permission से और standard के साथ में हम लोग करें. Okay. Yes. Okay, I think आपके questions हो गए लगते, कोई questions के लिए हाथ खड़ा नहीं किया. Done. I just wanted to complete close this topic today, so that's why we're taking little extra. Okay, I think it's done. Thank you very much, Srila Prabhupada ki jai. 3 times we chant Hare Krishna and then we close. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. हरे राम हरे राम तो भागवत श्रवण के बारे में चर्चा करेंगे. कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कल भागवत के बारे में, श्रीमद्-भागवत. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण.